So welcome for our second period of the classical mechanics. And you know, in the last period, we have seen the introduction of the classical mechanics and some basic concept related to the motion of particle when the particle is moving from one place to the another place in the light of Newton's law of motion, isn't it? So now the second part, as you know, in the beginning, I have told you that throughout this particular chapter, we are dealing with a particle which is moving from one place to the another place according to the Newton's law. And therefore, the classical mechanics is also called as the Newtonian mechanics, isn't it? So now we will see the further articles of this particular chapter. And so this lecture is called as the classical mechanics second period. Can you see my slide please? आप देख रहे हैं मेरी slide? So this is the in this particular lecture we will try to cover the conservative forces and the potential energy. किसके conservative forces and किसकी potential energy? The particle which is moving from one place to the another place according to the Newton's law of gravitation or Newton's law of motion. And the second article we will deal with the mechanics of system of particle. Instead of considering the one particle, we will consider a system which is consisting of large many particles. And the most important thing that we are going to define here, a new concept, that is the constant, isn't it? Now conservative forces and potential energy. Now what you can see, let us consider that there is a particle. Can you see my slide please? आप slide देख रहे हैं screen पर? Yes sir. So let us consider that there is a particle here at the place A and it is starting moving towards the place 2. यानी कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है and the path which the particle has adopted in going from 1 to 2, it is maybe P or it may be Q. ये A के रास्ते से भी 2 के तरफ जाएगा, P के रास्ते से भी और Q के रास्ते से भी. P का रास्ता मैंने जो है तो कंटिन्यूअस लाइन से बताया और Q का रास्ता मैंने जो है तो डॉटेड लाइन से बताया. अगर पार्टिकल जो है तो 1 से 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इन्हें फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या करेंगे? वर्क इज डन, isn't it? Last time we have seen जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता तो it does the work, and the work done by the particle in moving from point 1 to point 2 or place 1 to place 2, it is equals to W12, and it is given by, according to our equation, integration from 1 to 2 FDR. This is equal to work done in moving from 1 to 2 through the path P. उसी तरह path Q से अगर जा रहा होगा तो it should be exactly equal to Q integration from 1 to 2 FDR, isn't it? And therefore this total work is equals to same. यानी कि 1 से 2 को जाते वक्त P के रास्ते से या Q के रास्ते से अगर उसके ऊपर सेम कुव्वत लग रही है तो this region of the particle is experiencing the conservative force. सेम कुव्वत लग रही, A के रास्ते P के रास्ते से भी गया तो और कौन से रास्ते से गया तो Q के रास्ते से. जब दोनों वक्त उतनी कुव्वत अगर उन्हें एक्सपीरियंस कर रहा, उतनी कुव्वत अगर उन्हें हासिल कर रहा तो वो फोर्स क्या, कौन सी कुव्वत कहलाएगी, कौन सी फोर्स कहलाएगी? कंजर्वेटिव फोर्स. एंड दिस रीजन it is called as the conservative force field and it is given by this formula integration this one. लेकिन दोनों तरफ फोर्स अगर बराबर है तो हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन FDR is equals to 0. Thus the force is conservative. इसका मतलब क्या है? कुव्वत जो पार्टिकल को लग रही है 1 से 2 को जाते वक्त, खा वो P के रास्ते से हो या फिर Q के रास्ते से हो, it is equals to same. And work done on the particle along the closed path, जो टोटल क्लोज पाथ है 1 से 2, 2 से 3 दिख रहा है, 2 गोल रास्ता पूरा क्लोज्ड पाथ के दरमियान, उसकी कुव्वत कितनी रहेंगी? The work done around the closed path force is equals to 0. And therefore according to Stokes theorem, Stokes theorem तो हमने 12th में देखे थे, उसको कैसा लिखते हैं हम? यानी टोटल वर्क डन FDR along the closed surface PQ, it is equal to curl FDS, isn't it? And that work done it along the closed round is 0. And therefore according to this one क्या लिख सकते हैं हम? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन FDR is equals to डबल इंटीग्रेशन कर्ल FDS. लेकिन यहाँ DS क्या है? चेंज इन एरिया है, यानी कि इफ इट इज इक्वल्स टू 0, जब DS अगर 0 है तो इसका मतलब कर्ल F इज इक्वल टू 0. कर्ल F बोले तो क्या जी? कर्ल डॉट प्रोडक्ट, कर्ल प्रोडक्ट देखेंगे अपने, क्रॉस प्रोडक्ट डेल्टा इंटू F, isn't it? डेल्टा बोले तो क्या? एनीबॉडी?
डेल्टा मीन्स व्हाट? डेल्टा मीन्स व्हाट? डेरिवेटिव, यानी कि d2y by dx dy बोला था ना मैंने। तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या? माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी बोले तो dv by dx, लेकिन इसको यूनिट वेक्टर लगाएंगे i j k, तो i dv by dx प्लस j dv by dy प्लस k dv by dz। अब उसको और एक अगर डेरिवेटिव लिए कर डेल्टा इंटू डेल ऑफ ई। डेल ऑफ ई क्या है? दिस वन। अगेन डेल बोले तो आई डी टू, तो ये क्या हो जाएगा? डबल डेरिवेटिव आई डी टू वाई बाई डी टू वी बाई डी वाई डी जेड, डी टू वी बाई डी जेड डी वाई, यानी कि जो उसका रहेगा उसका दूसरा। तो दिस इज टोटल, यहाँ पर क्या होगा? डबल डेरिवेटिव। और यहाँ पर वी क्या है? ये द स्केलर फंक्शन वी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी of the particle which is moving from the point A to point 2 through the path A or B and it does not changes। यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की कैसी रहती है? जब 1 से 2 की तरफ जाता तो इट रिमेन कांस्टेंट। इक्वेशन 4 shows that the V does not changes, hence the zero or reference level of the potential function V is an arbitrary and it is convenience। Can you see please? आप देख रहे हैं? Yes sir. Yes sir. यहाँ पर ये बता रहे कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी के वास्ते अगर हम जाएंगे तो पहले हमने क्या करे? क्रॉस प्रोडक्ट करे, ना डेल डॉट वी लिए थे। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेने का, इफ यू टेक द स्केलर प्रोडक्ट, अब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे किसका? पिछले नंबर इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर क्या थी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ डी आई, यानी कि टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 to या प्लेस 1 to प्लेस 2। इसको डेल्टा वी में डेल क्रॉस वी लिखने के बजाय क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 डेल वी इंटू डी आर। डेल बोले तो वो डी टू वी बाई डी एक्स बाई डी वाई एंड सो ऑन। तो डेट इज माइनस 1 to 2 dv v1 माइनस v2, ये दोनों का चेंज क्या आएगा? ये आएगा ना v1 माइनस v2। अब अगर समझो हम यहाँ पर ये फर्ज करते हैं कि पोजीशन 1 से 2 को बजाय 1 से इंफिनिटी को गया, तो उस वक्त क्या हो जाएगा? लिमिट क्या बन जाएंगी? हमारी लिमिट बन जाएंगी 1 to या प्लस फ्रॉम प्लस 1 to इंफिनिटी। और उस वक्त ये इक्वेशन क्या बनेगी? v ऑफ r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r2 या x to r2 एफ डी आर, यानी कि इंफिनिटी से वहां तक। तो लिहाजा टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या? w12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ डी आर इज इक्वल टू v1 माइनस v2। यानी कि दोनों पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी एट द प्लेस 1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट द प्लेस 2। दोनों एनर्जी का डिफरेंस इज नथिंग बट दैट इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम प्लेस 1 to प्लेस 2। यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के बराबर है ना। वर्क बोले तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो कैपेसिटी टू डू वर्क। यानी कि कोई एक पार्टिकल है जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहा है, तो उसके एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाने का जो वर्क होता है, दैट वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस इन क्या? काय का डिफरेंस क्या है? v1 काय का डिफरेंस? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बोले तो टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन 2। isn't it? Can you understand? 2। तो यानी कि बात ये समझ Yes. में, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से टोटल वर्क डन इज इक्वल टू v1 माइनस v2। अब अगर इसी तरह से अगर हम कंजर्वेटिव थ्योरम की बात करें तो क्या, व्हाट यू कैन सी? Conservative theorem. Now, according to the energy theorem, amount of work done by the force is moving from place 1 to place 2 is given by। अब kinetic energy की उसमें अगर देखें तो work done is the difference in the kinetic energy of the two position, that is T2 minus T1। पिछले इसको में क्या लिए? पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से v1 माइनस v2। देख रहे हैं आप इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 का एक इक्वेशन है वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पाथ फ्रॉम प्लेस 1 to प्लेस 2, it is equal to the difference of the kinetic energy of the particle in place 2 and place 1। Equation 2 is the work done by the particle in moving from place 1 to place 2 in the difference in the potential energy v1 minus v2। अब इक्वेशन यानी दोनों भी इक्वेशन काय के? ये 1 और 2 क्या है? ये w12 काय की इक्वेशन है? ये प्लीज काय की? ये क्या है? ये वर्क डन है ना? ये प्लीज unmute yourself please। so v1 minus v2 is equals to t2 minus t1। दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो v1 minus v2 is equals to t2 minus t1। अगर v1 की कोएफिशिएंट एक जगह और t2 की कोएफिशिएंट एक जगह लाए तो t1 v1 is equals to t2 v2। क्या है जी ये t1?
kinetic energy of the particle at place 1. What is V1? Potential energy of the particle at place 1. It is exactly equal to the kinetic energy at place 2 plus potential energy at place 2. ये दोनों right left hand side T1 plus V1 क्या है? Total energy of the particle at place 1, और this one is the total energy of the particle at place 2, isn't it? That means total energy of the particle remain constant in moving from place 1 to place 2. अब वैसा अगर है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ इट इज इक्वल टू सेम, यानी कि टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. अब अगर टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट तो इसको ऐसा लिख सकते क्या? लेकिन न्यूटन्स का लॉ क्या बताता? सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मदिया प्लीज. F इज इक्वल टू m a, तो F इज इक्वल टू m a बोले तो m dv by dt into m F. कैन आई राइट लाइक दिस? F इज इक्वल टू m a, ऐसा लिख सकते ना m. अब अगर हम ये इक्वेशन m dv by dt को अगर दोनों तरफ v इज इक्वल टू dr by dt से जरब दें और इंटीग्रेट करें तो क्या ना राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, इंटीग्रेशन m dv by dt v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f जैसे का वैसा और ये इससे जरब देने का dr by dt into dt प्लस कांस्टेंट. ये m इंटीग्रेशन dv by dt को ऐसा लिख सकते क्या? d dt of 1/2 mv स्क्वायर. कैन यू अंडरस्टैंड प्लीज? कैन यू सी प्लीज? Yes, sir. समझ में आ रही ना बात? इसको ऐसा लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. लेफ्ट हैंड साइड को ऐसा लिखे, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पूरा इंटीग्रेशन क्या निकलेगा? 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या आता? सेम एज इट इज 1/2 m स्क्वायर माइनस ये f dr, ये जैसा के वैसा. इसको इधर लेके आए इज इक्वल टू 0. लेकिन ये 1/2 mv स्क्वायर काय की इक्वेशन है जी? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. और f dr काय की इक्वेशन है? अभी ऊपर देखे अपन, काय की इक्वेशन है? f dr अभी ऊपर देखे ना, पोटेंशियल एनर्जी की. वर्क, पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब T प्लस V इज इक्वल टू व्हाट? E. यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी T बोले तो काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E, यानी कि इट रिप्रेजेंट दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन. इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन थ्योरम फॉर द एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, total energy of the particle remain constant when the particle moves from place 1 to place 2. समझ में आया? कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी. हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखे थे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखे थे. अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ क्या देखे हमने? एनर्जी. यानी कि जब पार्टिकल एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाता तो क्या कांस्टेंट रहती? लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, यानी कि कॉन्जर्व है. एंगुलर मोमेंटम भी कॉन्जर्व है और टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो constant. यानी कि conserved. Now next one is the mechanics of system of particle. अभी तक के हम काय की बात कर रहे थे? एक पार्टिकल पकड़ते थे, है कि नहीं? सिस्टम में क्या पकड़ते थे कि एक ही पार्टिकल है जो एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जा रहा. अब हम पकड़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल. मतलब क्या जी? एक सिस्टम है जो बहुत सारे पार्टिकल की बनी हुई, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास रहता है. आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं जी? यानी कि पूरे पार्टिकल में एक जगह, समझे एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल की बनी हुई है. जैसा कि आपको याद होगा गेटर्स पेंडुलम का जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे फर्स्ट ईयर में, तो उंगली पर रख के हम उसका वेट करते थे. क्या बोलते थे? यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबा रॉड है, लेकिन पूरी की पूरी मास एक पार्टिकल के ऊपर उसकी क्या है? कॉन्सेंट्रेट है. तो दैट पॉइंट एट विच द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, इट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास. एम आई करेक्ट? प्लीज अफशा. Yes, sir. यानी कि अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? बजाय एक पार्टिकल के पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर करेंगे, यानी कि वहां सेंटर ऑफ मास करेंगे. सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला है? सेंटर ऑफ मास R इज इक्वल टू समेशन m1 r1 अपॉन m1, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है क्या नहीं? तो इट इज समेशन m1 r1 अपॉन एंटायर मास इज m. तो सेंटर ऑफ मास मूव्स इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स वेर एक्टिंग ऑन द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. पूरी की पूरी मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होती? एक पॉइंट के ऊपर, जो कि कहाँ पर है? कंसीडर करते हैं उसको सेंटर में, और वो पॉइंट क्या कहलाता? सेंटर पॉइंट. और वो पॉइंट जिसके ऊपर पूरी की पूरी मास कॉन्सेंट्रेट है उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास. एंड दैट्स व्हाई द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास कैन बी रिटन. जब जनरल पार्टिकल के वास्ते हम F इज इक्वल टू ma लिखते, तो एक सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल की बनी हुई है और वहां पे सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है,
तो वहां पे फोर्स न्यूटन्स लॉ कैसा लिखेंगे, एफ जैसा कि वैसा एफ, लेकिन ऊपर ई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या, यम ए, यम जैसा कि वैसा पूरे सिस्टम की मास कैपिटल यम से, और ए बोले तो क्या जी, d2r बाय, बराबर है क्या, क्यों d2r बाय dt स्क्वायर, यानी कि रेडियल डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो f इज इक्वल टू m d2r बाय dt स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा हम, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज f, यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अनअफेक्टेड, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी ऐसी बिहेव करती जैसा कि एक सिंगल पार्टिकल बिहेव कर रहा था, इजंट इट, देयरफॉर टोटल लीनियर मोमेंटम वैसे सिस्टम ऑफ मास के लिए क्या होगा, जो बहुत ऐसी सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल की बनी हुई है, उसका भी मोमेंटम क्या निकलेगा, p इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू dr बाय dt इज इक्वल टू अगेन m dr, यानी जो सिंगल पार्टिकल के वास्ते बोले थे वो पूरा के पूरा किसको लागू होता है, एज इट इज, प्लीज किसके लिए लागू होता, टोटल यानी कि ऐसी सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल की बनी होती है, हालांकि जो एक सिंगल पार्टिकल के वास्ते जो लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी का लागू है, वो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी लागू होता है। इस इक्वेशन से दिख रहा है कि मोमेंटम इज आल्सो m dr बाय dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन। कैन यू अंडरस्टैंड? समझ में आया इतना? Yes, sir. Now the next concept that we are going to consider, which is the most important now as far as the third year is concerned, or this paper is concerned, constraint. Anybody of you can tell me that you have heard this word constraint anywhere so far? सुने क्या जी आपने लफ्ज कभी एक constraint? मैं आपको बताता हूँ constraint क्या है। constraint बोलते ना, उस मेरे ऊपर बहुत constraint है, हमारे ऊपर बहुत constraints है। मतलब क्या? कंस्टेंट के लफ्जी मैंने अगर आप देखें तो बंदिश, रुकावट, समझ में आ रही बात? कुछ कंस्टेंट के साथ बात करते बोलते, मीडिया इज गोइंग टू से समथिंग विद सम कंस्टेंट, समबडी इज स्टूडेंट इज गोइंग टू से समथिंग विद द कंस्टेंट ऑफ द टीचर, टीचर का उसके ऊपर बंधन है, टीचर की उसके ऊपर रुकावट है, टीचर का उसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं? कंस्टेंट का मतलब रुकावट, बंदिश, रिस्ट्रिक्शन, जिसको बोलते हैं ना, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे कुछ कंस्टेंट्स हैं, क्योंकि हमारी लड़कियां जो है बगैर पर्दे के नहीं निकलेगी, बोलते ना ऐसा, कुछ कंस्टेंट्स है, रुकावट है, बंदिश है, उसकी वजह से हम बोल नहीं सकते, isn't it? So it is called as the constraints. अब यहाँ पे पार्ट, अब आप बोलेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में काय की कंस्टेंट की बात है, तो हम काय की बात कर रहे हैं? हमारे पूरे चैप्टर में किसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है प्लीज? एनीबॉडी? पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल की क्या? पार्टिकल की क्या प्लीज? पार्टिकल मोशन। तो यहाँ पर जब कोई पार्टिकल मूव करेगा और उसकी मोशन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ रहेगी, यानी कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल विद सम रिस्ट्रिक्शन, इज दैट रिस्ट्रिक्शन इट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रेंट। अब आप बोलेंगे कि पार्टिकल के ऊपर और उसके मोशन के ऊपर कैसी जो है तो रिस्ट्रिक्शन है, क्या जो है तो उसके ऊपर बंदिश है, क्या रुकावट है, तो लेट अस सी हियर। नाउ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज ऑलवेज सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन अनचेंज्ड। समझो एक रिजिड बॉडी है, एक बॉल है या एक हमारा केटर्स पेंडुलम है, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले गए, तो उसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो जगह चेंज करते क्या जी? केटर्स पेंडुलम की एक जगह से दूसरी जगह जाते? प्लीज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? उनके उस, हालांकि जब बॉडी हरकत में आई तो पार्टिकल, एक एक पार्टिकल भी हरकत में आया, आया कि नहीं? लेकिन हर पार्टिकल ने अपनी जगह छोड़ा कि हर दो मुतवातिर पार्टिकल के दरमियान का फासला बदला क्या? नहीं। इसका मतलब मोशन, पार्टिकल की मोशन के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है कि बॉडी मोशन तो करे, बॉडी हरकत तो करे, लेकिन दो पार्टिकल के दरमियान का फासला ना बदले, नहीं बढ़ा। So that means that is the restriction on the motion of the rigid body, that body should move but the individual particle should not leave their position. उसी तरह हम गैस की बात करें, घर में गैस का सिलेंडर है, am I correct? गैस किसकी बनी हुई है? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है। गैस के मॉलिक्यूल अंदर मुतवातिर हरकत कर रहे कि नहीं? इसका मतलब अंदर देखते ना आप, गैस के मॉलिक्यूल अंदर या किसी कंटेनर के अंदर गैस रखी हुई है तो गैस के मॉलिक्यूल हरकत करते कि नहीं? प्लीज करता है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल को क्या रिस्ट्रिक्शन है जी? बाहर नहीं आना उन्होंने, दे शुड मूव इनसाइड द कंटेनर ओनली, सिलेंडर कंटेनर। सिलेंडर के अंदर बाहर आ गए तो नया मसला हो जाएगा ना।
दे शुड नॉट मूव आउटसाइड। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है पार्टी मॉलिक्यूल्स के ऊपर गैस के? द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, बाहर नहीं आना। यस, बाहर नहीं आना, यानी कि गैस मॉलिक्यूल विद इन द कंटेनर इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इनसाइड द वॉल ओनली, दे शुड नॉट कम आउट ऑफ द कंटेनर। तो ऐसे बहुत Yes. सारे फ्री मोशंस हैं जिनके ऊपर क्या रहता? रिस्ट्रिक्शन रहता। Restrictions And this restriction is nothing but it is called as what? Constraints. constraints. उसी तरह अगर Constraints. कोई पार्टिकल है जो सॉलिड सरफेस के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर फिर रहा, लाड़ी लप्पा गोल घुमाते, देखो ऐसा ऐसा घुमा रहे हम, अगर पत्थर को पकड़ के रस्सी के ऊपर बन के ऐसा अगर गोल घुमा रहे, तो कैसा घूमना चाहिए? पत्थर ने सॉलिड सरफेस के ऊपर ही घूमना है क्या? नहीं, अंदर अगर आया तो एक तो अगर पत्थर निकल के चले गया तो क्या खत्म हो जाएंगी? मोशन ही खत्म हो जाएगी। और अगर अंदर आया तो लगेगा अपने को। तो क्या कंडीशन है? मोशन शुड ऑफ द बॉडी along the solid sphere should be restricted, that it should only move on the surface of the outside surface, है कि नहीं? ऊपर ऊपर से फिर रहा है सब, अंदर आया तो what happen? If it मोशन खत्म हो जाएंगे और यस, और लिहाजा अब आपको 3 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कंस्टेंट किसको बोलते हैं। यानी कि मोशन ऑफ द पार्टिकल which is under some restriction, and this restriction is called as what? constraints. So thus from the above example you come to know that the motion of the particle, एक single particle हो या system of particle, जैसा मैंने गैस के मॉलिक्यूल को दिया, system of particle is restricted or limited, isn't it? ये क्या है? restricted Yes. है या फिर limited है, and this limitation या this restriction of the motion of the particle is called as what? यही मोशन, Constraints. कंस्टेंट, यही रिस्ट्रिक्शन, यही लिमिटेशन, यही बंदिश, यही रुकावट जो कि पार्टिकल के मोशन में तो है पार्टिकल, लेकिन उसकी मोशन किसके साथ है? कुछ बंदिशों के साथ है, कुछ रुकावटों के साथ है, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ है, कुछ लिमिटेशन के साथ है। सो दिस लिमिटेशन इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज कंस्टेंट। कंस्टेंट की किस्में है, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंस्टेंट, देयर आर लार्ज मेनी classification of the constants are there, but 2 important classification of the constants is holonomic constants. holonomic ये लफ्ज आया ग्रीक से, ग्रीक और लैटिन का मिला हुआ लफ्ज है ये holonomic constant. holonomic constant किसको बोलेंगे? the constant limit the motion of the system and number of independent coordinate needed to describe the motion. अगर किसी कोई पार्टिकल है और वो हरकत कर रहा, और उसकी जो है फॉर एग्जांपल जो है पार्टिकल इज अलाउड टू मूव ऑन द सर्कमफ्रेंस, गोल हरकत कर रहा, समझो कैसी हरकत कर रहा? ऐसा गोल घूम रहा है, यानी कि किसके अलांग घूम रहा? अलांग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जब वो पार्टिकल अगर ऐसा गोल घूमता, एंगुलर मोशन रहता, सर्कमफ्रेंस के अतराफ घूमता, तो उसके कोऑर्डिनेट कौन से रहते? आपको मैंने बताया था किसी भी पार्टिकल की मोशन को जाहिर करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम लगती है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। या फिर अगर गोल घूम रहा होगा तो थीटा, सुने क्या आपने कभी? थीटा फाई, गोल घूमने लगा तो एंगल निकालना पड़ता ना अपने को। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर अगर सर्कल अगर घूम रहा तो उस वक्त उसके कोऑर्डिनेट q1 is equals to theta is sufficient to describe the motion. लेकिन because the radius of the circle remain the same, क्या कंडीशन है? गोल घूमते वक्त कैसा घूमना जी उन्हें? यानी कि उसका जो रेडियस वेक्टर है r, वो हमेशा बराबर रहना, नीचे ऊपर नहीं जाना उन्हें। एम ए करेक्ट? that particle at any angular coordinate theta relative to center of the circle is same. यानी कि रेडियस वेक्टर जो r है, it should be equal to पोजीशन वेक्टर किसके बराबर रहना? रेडियस के बराबर रहना। एम ए करेक्ट? r should be equal to, यानी कि उसका जो रेडियस वेक्टर रहता है ना, सेंटर से जो लाइन निकालते हैं उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं ना, समझ रहे आप? प्लीज। Yes, sir. तो वो किसके बराबर रहना? वो डिस्टेंस बदलने के गोम घूमते वक्त नीचे ऊपर नहीं होना, बोले ना अपने वो रेडियस वेक्टर बराबर है, यानी वो किसके बराबर है ना? रेडियस के। तो r शुड बी इक्वल टू किसके? a। जब r शुड बी इक्वल टू a हो तो r माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा क्या? ऐसा होगा? रेडियस वेक्टर माइनस रेडियस शुड बी इक्वल टू 0, एम ए करेक्ट? प्लीज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मदिया। Yes. बराबर है। यानी कि जब कोई पार्टिकल हरकत कर रहा और उसकी इक्वेशन अगर इस इक्वेशन नंबर 1 के जरिए दी जा रही, तो द मोशन, द कंस्टेंट एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ मोशन या विच टाइप ऑफ कंस्टेंट?
होलोनॉमिक कांस्टेंट, यानी कि जब कोई पार्टिकल हरकत कर रहा उसके साथ जो कांस्टेंट है उसकी इक्वेशन अगर ऐसी तरह दी जाती है कि सम कांस्टेंट इट शुड बी इक्वल टू ए जीरो, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर r minus a is equals to 0 in this equation, that constant it is called as कौन सी कांस्टेंट? Holonomic. होलोनॉमिक. इक्वेशन 1 एक्सप्रेस द कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकल ऑफ द सर्कुलर, यहाँ पे सर्कुलर मोशन था तो r minus a should be equal to 0. अगर दूसरा कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट रहता q1 is equals to थीटा, q2 is equals to phi, दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रहते तो उस वक्त जो है तो हम इसको कैसे लिख सकते थे कि r1 should be equal to this one, r is equals to थीटा. Therefore अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पहले का रेडियस वेक्टर r1, दूसरे का r2, तीसरे का r3, सबका अगर ऐसा है तो उस वक्त टोटल फंक्शन ऑफ r1, r2, r3 एट सम टाइम t इट शुड बी इक्वल टू क्या रहना उन्हें? Zero. जीरो. अगर कोई हरकत पार्टिकल की अगर इस इक्वेशन की मदद से दी जाती है तो उस पार्टिकल की हरकत के ऊपर कौन सा कांस्टेंट है बोलेंगे हम? Holonomic. Holonomic constant. And therefore a system is there, it is consisting of n number of particles, then we may use to this equation to eliminate the m number of n coordinates, and we only need the n independent coordinate to describe the motion, and therefore n is equals to 3n minus m. यहाँ पर 3n minus m क्या है? ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी कि एक पार्टिकल को अलग अलग घूमने के कितने रास्ते हैं, that is called as the degrees of freedom. होलोनॉमिक कांस्टेंट की एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं आप? रिजिड बॉडी. अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि दो पार्टिकल के दरमियान का फासला क्या होना, कैसा रहना, बदलना है क्या हरकत के वक्त? No, constant. तो इसका मतलब रिजिड बॉडी कांस्टेंट रहना. जब वो कांस्टेंट है इसका मतलब पहले का रेडियस वेक्टर माइनस दूसरे का रेडियस वेक्टर कितना आएगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा. इन केस ऑफ मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंजेस विद टाइम. जब ये टाइम के साथ नहीं बदलता तो ri minus rj the position vector of ith and jth particle and the distance between them can be expressed by this equation. बराबर है क्या? ri position vector of first particle minus rj position vector of second particle, it should be equal to क्या? कांस्टेंट. जब ये कांस्टेंट है इसका मतलब रिजिड बॉडी के ऊपर पार्टिकल की मोशन के ऊपर जो कांस्टेंट है वो कौन सी है? कौन सी है? होलोनॉमिक. उसी तरह अगर एक से ज्यादा पार्टिकल है, अगर हम समझो कंपोनेंट लिए xi, yi, zi, xj, yj एंड zj, तो उस वक्त भी टोटल ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रही इट इज आल्सो सेम. इसका मतलब ये कैसी कांस्टेंट है? होलोनॉमिक. दूसरी अब रिजिड बॉडी में अब एक सिंपल पेंडुलम की अगर मैं मोशन लूं तो सिंपल पेंडुलम में क्या रहता है? एक धागा रहता, उसके अंदर भी क्या है? इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम किसको लटकाते हैं अपने रिजिड सपोर्ट को. तो रिजिड सपोर्ट में लगाते वक्त धागा कभी ऊपर जाना क्या नीचे आना क्या, वो फासला तो हमेशा कैसा रहना? सेम रहना. द कांस्टेंट इज दैट ड्यूरिंग द मोशन डिस्टेंस बदलना क्या जी? जब रिजिड सपोर्ट को धागा लगा दिए तो लेंथ हमेशा बदलेंगे क्या अपन हरकत करते वक्त कि भाई इधर से इधर जाते वक्त लेंथ 2 सेंटीमीटर होंगी, इधर से उधर आते वक्त 5 सेंटीमीटर होंगी. ऐसा होगा कभी? ऐसा होगा कि अगर ऐसा हुआ तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगी क्या? नहीं रहेंगी. लिहाजा फिर सिंपल पेंडुलम की मोशन कैसी है? इट इज विद द कांस्टेंट दैट द लेंथ शुड नॉट बी चेंज, यानी कि लेंथ बोले तो कौन सी? पेंडुलम, वो जो धागे की लेंथ है जो रिजिड सपोर्ट को लगाया हुआ है वो और बॉब का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहना? सेम रहना. यानी कि लेंथ कैसी रहना? हमेशा कैसी रहना? सेम रहना. जब लेंथ सेम रहना तो सेम रहना. r is equal to l, यानी कि रेडियस वेक्टर क्या होगा? उसकी लेंथ. तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली इक्वेशन दिख रही है आपको, r is equal to l is equal to constant. जब ये r is equal to l is equal to constant आया इसका मतलब ये एक्सप्रेशन नंबर 1 के जैसी है कि नहीं? r minus rj is equal to constant. लिहाजा सिंपल पेंडुलम के ऊपर भी जो कांस्टेंट है वो कौन सी कांस्टेंट है जी? Holonomic constant is there. Holonomic constant. And this constant is called as holonomic. इसको और एक नाम है स्केरोलोनॉमिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. समझ में आई बात? आप कांस्टेंट समझा आपको? Have you got the constant? Yes sir. होलोनॉमिक कांस्टेंट. होलोनॉमिक कांस्टेंट बोले तो जो इस इक्वेशन से दी जाएगी कि दो पोजीशन वेक्टर या दो कांस्टेंट के दरमियान का फासला या कोई एक इक्वल टू कांस्टेंट. Isn't it? Have you got? ना अब जो होलोनॉमिक कांस्टेंट नहीं है, जैसा कि गैस के मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट है? कि बाहर नहीं निकलना. लेकिन दो मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला हमेशा सेम है क्या जी? नहीं.
मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, कैसी भी हरकत करेंगे, बेतुकी की हरकत करेंगे, खाली कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या है कि उन्होंने बाहर नहीं आना। लेकिन दो मॉलिक्यूल के दरमियान का फासला हमेशा कम ज्यादा होता रहेगा, यानी कि r इज इक्वल टू a है क्या, वहां रेडियस वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस है क्या, नहीं, यानी कि नहीं, r इज ग्रेटर देन, कभी ग्रेटर भी रह सकता, कभी a भी रह सकता, तो r माइनस a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि जो मोशन के अंदर ऐसी इक्वेशन रहेंगी, इक्वेशन नंबर 2 ऐसी बनेंगी, तो दैट कांस्टेंट इट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन होलोनॉमिक। या दूसरे अल्टरनेट डेफिनेशन, नॉन होलोनॉमिक, या अल्टरनेट डेफिनेशन आप ऐसी दे सकते हैं कि जो होलोनॉमिक नहीं है वो कौन सी है फिर, होलोनॉमिक है। नहीं जो होलोनॉमिक नहीं है अच्छा, वो नॉन तो होलोनॉमिक। नॉन होलोनॉमिक रहेंगे, यानी जिसमें r माइनस ए इज इक्वल टू 0 या r माइनस ए इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं रहेगा, कम या ज्यादा रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन होलोनॉमिक। है यू गॉट प्लीज? Yes. So constant Yes, is sir. another example of the holonomic constant is there. This is the example of, अब हम नॉन होलोनॉमिक के कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। रूलिंग डिस्क, a system is said to be non-holonomic if it corresponds to the non-integral difference equation. Such constant cannot be expressed in equation, यानी कि पीछे r minus a is equal to 0. Obviously, holonomic system has a integral differential equation of the constant expressible in equation 3. In order to explain this, let us consider a disk. Disk समझता ना आपको, ruling on the rough horizontal xy plane. ऐसा एक डिस्क है, समझो खाली है, ऐसा डिस्क है, वो xy प्लेन के ऊपर घूम रही, with the condition is that फिसल गुंडी बोलते ना, हाँ सर, ना कैसा है, उसके ऊपर xy प्लेन से अगर हम हरकत कर रहे, क्या कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन क्या है, जिसके अंदर कांस्टेंट क्या है, क्या आपने आजू बाजू नहीं गिरना, उसमें चलना है कि नहीं, ऐसा समझो, ऐसा क्रॉस रहा है तो उसके ऊपर से आप घुमाते ना, तो कंडीशन क्या है कि आजू बाजू नहीं गिरना, नीचे तक आना फिसल गुंडी में। तो वी चूज द कोऑर्डिनेट xy फॉर द सेंटर ऑफ डिस्क एंड एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ डिस्क एंड थीटा फॉर द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो व्हाट हैपन, ऐसी पिक्चर दिखना क्या, ये तो ये डिस्क है ऐसे प्लेन के ऊपर फिर रही, तो क्या होगा उसके ऊपर अगर देखें, इफ a is the radius of the disk, the constant at the axis of the disk is perpendicular to the vertical direction, gives the velocity v of the disk with magnitude। यानी कि यहाँ से यहाँ तक फिरना होने खाली, क्या कंडीशन है, गिरना नहीं, तो उस वक्त क्या होगा, v is equals to a phi, a is the acceleration, a is equal to d phi by dt, as the direction of velocity is perpendicular to the axis of the disk, the component of the velocity along x axis और y axis क्या बनेंगे, vx, v वेलोसिटी बोले तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिख रहा है क्या आपको यहाँ, dx by dt, dx by dt के दो कंपोनेंट आपको मालूम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि यहाँ की वेलोसिटी दो कंपोनेंट में जाती है, एक x कंपोनेंट और एक y, यानी कि dx एक बनेगा v sin थीटा और दूसरा बनेगा माइनस v cos थीटा। तो फिर dx by dt को मैं ऐसा लिखूंगा a d phi by dt sin थीटा, इसको भी ऐसा लिखूंगा dvy by, यानी कि dy by dt is equal to माइनस a, ये जैसे वैसा d phi by dt into cos थीटा। तो क्या मैं दोनों इसको ऐसा लिख सकता dx माइनस a sin थीटा d थीटा d phi is equals to 0, और ये हो जाएगा dy, इधर ये लेके आऊंगा a cos थीटा d phi by d थीटा। ये दोनों की इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं देखूं और इसका इंटीग्रेशन लूं, तो ओवरऑल इक्वेशन फंक्शन किसका है जी, ये किसका फंक्शन है, r1 r2 r3 इन अर्थ टाइम, और यहाँ पे सूरत में क्या कांस्टेंट है कि यहाँ पर जो है तो फासला बदलेगा लेकिन गिरेगा नहीं, यानी कि दिस इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू ऑफ इक्वेशन 1। लिहाजा ये जो डिस्क की इक्वेशन है ऑन द रूल, रूलिंग डिस्क की जो मोशन है इट इज हैविंग द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट इज ऑफ विच टाइप, होलोनॉमिक या नॉन होलोनॉमिक, r माइनस ए इज इक्वल टू 0 या r माइनस ए इज इक्वल टू 0 या कांस्टेंट आ रहा है क्या जी, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसी दूसरी इक्वेशन है, कांस्टेंट नहीं आ रहा, इट इज द नहीं आ रहा, इट इज द नॉन होलोनॉमिक। सो दिस आर द टू मेन क्लास, कांस्टेंट समझ में आया, रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल, एंड कांस्टेंट्स आर ऑफ टू टाइप, मेनली टू टाइप, बहुत सारे हैं किस्में लेकिन मेनली टू टाइप्स, होलोनॉमिक एंड होलोनॉमिक। होलोनॉमिक क्या कि होलोनॉमिक वो जो जिसके अंदर रेडियस वेक्टर r माइनस ए शुड बी इक्वल टू ए कांस्टेंट, और जिस r माइनस ए अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो कौन सी किस्म कहलाएगी, that will be called as non-homonomic. Have you got please? Yes sir. So with this one, if you have any question please tell me.